Assalamu alaikum my dear students, welcome in Asadullah Khan Knowledge Hub. So this is your first online biology class. Already many of you have attended the live lecture of biology. Hope you have enjoyed that lecture, and for same lecture now this is a video notes for you people. So already I gave you the reduced syllabus for this chapter in my orientation lecture. So in my live lecture also I have discussed with you people the part what we will be going to study in this chapter. So let's start with the first chapter of your biology textbook, and this is living world. So in this chapter we will be going to talk about the living world around us, that is the living organisms present around us, and what are the different variety we will find in them, and the different basic principles of life. So let's get started. So this is the reduced syllabus of this chapter. Only 1.1 beat we will be taking in this chapter, and rest all part, that is 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7, these all beats are as a omitted part or take it as a reduced syllabus. तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके चैप्टर का ओमिट वाला पार्ट है, यानी इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. एंड ओनली थिंग यू विल बी स्टडीइंग फ्रॉम दिस चैप्टर इज द बीट 1.1, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. तो बस यही एक बीट हमको इस चैप्टर से पढ़ना है, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया है आप लोगों से. तो ये सिर्फ एक बीट है जिसको हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. So our living organism or the living world is made up of different biotic and abiotic factors. Biotic factors मतलब के सारे living organisms like the human being, like the plants, like the organisms, like the birds, insects, etc. And लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग या बायोटिक फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो लाइक सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव. तो ये सारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में. दैट इज़ द रीज़न ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के कॉम्बिनेशन टाइप का जो है हमारा लिविंग वर्ल्ड होता है. सो द प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इफ विल टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. द प्लांट्स विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट सॉइल, विदाउट वाटर, विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर, isn't it? So these are the different abiotic factors that are essential for the survival of the biotic factors. So that is the reason they both will go hand in hand. So let's come to the point, that is the basic principles of life. So this is the actual part what we will going to study in this chapter. So if I will talk about the basic principles of life, so there are 6 different principles of life discussed over here. So let's have a look on those 6 principles one by one. So the very first principle is metabolism. Now what is metabolism? Now if I will talk about the living organisms, so the living beings once produce or once it get born, it has to survive, isn't it? एक बार जो है वो इस दुनिया में आ गए तो हमको by hook or crook or in any circumstances we have to survive, and for survival we needs energy, isn't it? What is energy? Energy is nothing but the capacity to do work, and from where we will get this energy? We will get the energy from the food whatever we are eating, isn't it? So for this energy production we have to take a food, and whatever food we will take or we will eat, so it will be undergoing certain chemical processes. So that chemical process itself is called as metabolism, isn't it? So for energy it has to perform metabolism, and metabolism is nothing but the breaking of molecules, that is called as catabolism, यानी कि large molecules का conversion हो जाएगा small molecules में, and as a result energy release हो जाएगी, and
यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स बने हैं, सो ये जो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज anabolism. So metabolism is having two part, that is catabolism and anabolism, and दोनों में यहाँ पे हमको जो है वो एनर्जी मिलती है. And what type of energy? So that is the chemical energy. So chemical energy का conversion होता है, isn't it? Mitochondria में, mitochondria is called as power house of the cell, isn't it? हमने अपने lower classes में पढ़ा है कि mitochondria is a power house of the cell. तो whatever food we are eating, that is the balanced diet we are eating, so that is having carbohydrate, fats, तो ये सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, एंड एज अ रिजल्ट हम लोगों को ATP मिलती है, एंड हमारा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का प्रोसेस, जैसे कि इसको कॉमनली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है. सो कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल एंड एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता रहता है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है, एंड वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमारे सारे दिन भर के कामों के लिए. वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग एंटायर डे, हमको एनर्जेटिक फील करना पड़ता है, इजंट इट? हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, और वो उस एनर्जी के बेसिस पे ही हम सारा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहते हुए हम अपने सारे काम परफॉर्म करते हैं. तो दैट इटसेल्फ इज मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट. नाउ आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ग्रोथ. तो जैसे कि आपको पता है, जैसे ही लाइफ स्टार्ट होती है उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट होती है. फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिजम्स शोज टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दिस ग्रोथ is a well organized process or well indicated process, we can say, where we can take ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट कि कैसे एक छोटे से प्लांट से एक जाइंट ट्री वहाँ पे डेवलप हो जाता है, कैसे एक छोटा सा बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके हाथ पैर छोटे छोटे से होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर भी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. तो इट इज़ अ वेर व्हाट वी कैन से आइडेंटिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट सेम अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो इट इज़ अ फैक्टर और इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोगों को ये ग्रोथ नज़र नहीं आती, इजंट इट? किसी भी नॉन लिविंग की बात कर लो आप, अगर एक से फॉर एग्जाम्पल रिवर है, सी है, दैट विल नॉट ग्रो. एक इवन सी फॉर एग्जाम्पल सैंड माउंट्स है, तो ये सैंड माउंट्स विल नॉट ग्रो. हवा की मदद से वो सैंड इधर से उधर उड़ सकती है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती. ओके, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ग्रोथ. ग्रोथ इज सिंपली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेम वे में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बोल्डर्स की, isn't it? The boulders will not grow. The big stone, the pebbles और the big giant type के stones जो है वो पड़े होते हैं. हम लोगों ने मरीन ड्राइव पे भी देखा है, अलग अलग शेप के जो है वो लोग स्टोन्स ला के रखते हैं, तो दे आर द बोल्डर्स. तो वो बोल्डर्स भी कभी जो है वो ग्रो नहीं हो सकते. क्यों ग्रो नहीं हो सकते? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ग्रोथ. ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. सो दैट इज द रीजन ग्रोथ इज नॉट अ फॉर्म विद इन, एंड हेंस जो है वो ये मोल्ड्स जो होंगे वो नॉन लिविंग्स होंगे. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है ग्रोथ इज लिमिटेड. So we are observing the growth or certain pattern right from the childhood till the adolescence or till the old age. तो ये एक limited time के लिए growth होती है. Growth and development are not the process which have unlimited time span. So at a certain point of time, the molecules, the organ system, it begins to lose its effectivity of working and hence it becomes old. तो इस तरीके से जो है वो जैसे ही हमारे बॉडी में और ग्रोथ होती जाती है, हमारे सिस्टम्स जो है वो वीक होते जाते हैं. आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डाइजेस्टिव कैपेसिटी नौजवानों में या यंगस्टर्स में होती है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो ओल्ड एज पीपल में नहीं होती. इवन दो दे आर ऑल्सो ईटिंग वेरी लिमिटेड टाइप ऑफ फूड, फिर भी जो है वो उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो चुका होता है कि उनको जो है वो उसको भी डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का कि जो लाइफ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगी, एक सर्टन पॉइंट पे आके वो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द डीके पीरियड. यानी उसके बाद जो है वो बॉडी में धीरे धीरे डीके स्टार्ट होगा, एंड वन पॉइंट द लाइफ विल गेट वैनिश. ओके, ऑर्गन्स जो है वो जवाब दे जाएंगे, उस कंडीशन में जो है वो बॉडी में गेट डाइड. सो दैट इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. Now next principle of life is a reproduction. So life has to continue, hence the organism tries to produce a young one on like itself.
So it is possible due to the process of reproduction. आपने lower standards में पढ़ा है कि reproduction is of two type, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So this reproduction will ensure the continuity of the races, isn't it? जो life है वो आगे बढ़ती ही रहती है. The mango tree will produce the mango plant of its own type. The dog will reproduce a puppy, isn't it? The cat will represent kitten. तो ये आप लोग जो है वो लोअर स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ चुके हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रोडक्शन उसकी रेसेस आगे बढ़ेगी, उसकी स्पीशीज जो है वो आगे बढ़ेगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ओनली द पॉपुलेशन ऑफ इट्स ओन विल ऑल्सो बी इंक्रीज. ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है. रिप्रोडक्शन भी जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अनदर अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लाइक इफ आई विल टॉक अबाउट म्यूल्स, तो म्यूल्स इज ऑल्सो अ स्टेराइल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इवन दो इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इसके अलावा अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो स्टेराइल वर्कर बीज, हनी बी में जो स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं दे विल ऑल्सो नॉट रिप्रोड्यूस, येट दे आर लिविंग बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस. तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं. The next characteristic is the body when it's lose the capacity to perform metabolism, the organisms die. So that is the reason we have to keep our metabolism in boost. We have to boost our metabolism. Otherwise, if the body will lose the performance of metabolism, the organisms may ultimately die. So that is the next characteristics or the principle. Then the next principle, if I will talk, that is the response to surrounding. Here we can say that living organism is having the ability to respond to thermal, chemical or biological changes in the surrounding. So this is the unique property of living beings. Like हमको कोई अगर गर्म चीज़ को हम हाथ लगाते हैं तो उसको हम फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं, that is called as response to stimulus. इसी तरीके से living organisms के अंदर भी ये response की ability होती है. तो that is the another basic or we can say the last basic principle of the life, that is response to surrounding. So there is immense diversity in living organism. Since time, variety of organisms are living together on earth. So in order to understand the interrelations between living and non-living as well as between two living beings or group, its systematic study is very essential. We know that there is an immense variety in living organisms. If we will talk about birds, there are many varieties available. If we will talk about fish only, simple fish की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिश के अंदर भी हम लोगों को कितनी सारी varieties मिलती है. इवन बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में भी उनके उनके बीक का स्टाइल, उनके क्लॉज, उनके लेग्स अलग अलग तरह के सारे होते हैं. तो ये वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलती है. तो ये जो वैरायटी है जिसकी वजह से लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो रिलेशन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के रिलेशन की वजह से ये कंप्लीट इन्वायरमेंट और ये इकोसिस्टम जो है वो चल रहा है. तो इसको स्टडी करना होता है, यानी कि द रिलेशन जो है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और वी कैन से द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उसके लिए जो है वो एक स्टडी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है एंड दैट प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन से वेयर ऑल द सिस्टमैटिक स्टडी और द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हम लोग कर सकते हैं. तो इसी के बेसिस पे हमको जो डेटा मिलता है लाइक 2.3 बिलियंस और 3.2 बिलियंस प्लांट्स है, 2.5 बिलियंस एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो पाई जाती है. तो ये एक बेसिक डेटा हमको जो मिलता है वो मिलता है टेक्सोनॉमी से. सो टेक्सोनॉमिकल एड्स ज़रूरी होते हैं ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करवाने के लिए और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. सो टेक्सोनॉमिकल एड्स वी रिक्वायर. सो वट एवर डेटा वी आर हैविंग, दैट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चर. Intensive laboratories and field studies in order to identify and classify the organisms from strong basis for meaningful use of a collected data, isn't it? हमारे इंटायर इंडिया में कितनी वैरायटी है और वो वैरायटी को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ मच बायोडाइवर्सिटी वी आर हैविंग. वन थिंग लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज हैविंग 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द बायोडाइवर्सिटी, isn't it? दैट मेनी डाइवर्सिटी वी आर हैविंग इन आवर कंट्री. सो उसको जानने के लिए जो है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत होती है. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स वी आर हैविंग. So these are the various taxonomical aids like botanical garden, then zoological park, museum, herbarium, keys, flora,
okay, manual, we can observe the organisms. So these are the different taxonomical aids जिसकी वजह से हम लोग जो है वो organisms को observe कर सकते हैं. आपने सुना होगा zoological parks में animals को conserve किया जाता है, preserve किया जाता है. herbarium में plants की species को monitor किया जाता है. botanical parks होते हैं जहाँ पे अलग अलग नई नई variety के plants को preserve किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है. तो ऐसे taxonomical aids की हम लोगों को ज़रूरत है आज, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें. बिकॉज लापरवाही की वजह से हम लोग जो है वो अब तक बहुत ज़्यादा अपने असेंशियल स्पीशीज़ को खो चुके हैं. सो दैट इज़ द रीज़न स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे जोलॉजिकल टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो आजकल डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक्सटेंशन रुक रहा है. और जो डेंजरस जोन जो बना था, एक रेड डेटा बुक जो है वो जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है उनकी लिस्ट वहाँ पे बनाई जाती है. तो अगर हम लोग ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. सो आप लोग एक काम करोगे कि आप अपना चैप्टर पूरा पढ़ोगे, जिसमें आपको ये सारे एड्स के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी. Though this much part is only included in your syllabus, rest all is the reduced part of your chapter, but please go through that chapter, simply read it like a story for the extra information, because बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्स वहाँ पे दी गई हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को इस चैप्टर में. बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रीड करने के लिए. स्टिल आप उसको सिर्फ रीड करो लाइक अ नॉलेज पार्ट, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी. एंड अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट आता है तो वी कैन डिस्कस दैट डाउट्स इन अवर लाइव क्लास. सो inshallah we will meet next time. Thank you for giving me your essential time. For further updates of Dr. Asadullah Khan English High School and Junior College, don't forget to press the bell icon.